आंखों की बिनाई नहीं है जी, इसकी आंखों की बिनाई नहीं, इसकी आंखों की बिनाई नहीं है जी। मोहम्मद तेरे सहाबी का वो शाना याद आता है, गलियों में उमर का जाना याद आता है। तो मजबूर, बेबस और बेकस तीन औलादों के मजबूर बाप की मदद करिएगा, क्योंकि इनकी अहलिया जिंदा लाश बनी हुई है। आंखों की बिनाई नहीं है जी, इसकी आंखों की बिनाई नहीं, इसकी आंखों की बिनाई नहीं है जी। नहीं जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। मैं चाहता हूँ मकान के लिए, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? इस पहाड़ी पर रहता हूँ मैं, मेरे को 12 साल हो गए यहाँ श्रीनगर में, मैं क्या करूँगा? صبحس گژھان خاندار مزوٗرۍ دۄہ تہٕ شامنس یِوان پتہٕ چھِس رننہٕ پیٚوان تہٕ گرِ کیٛاہ کرِ؟ تُہۍ چھِو نہٕ ہٮ۪کان بالکل کِہیٖنۍ؟ نہ حظ نہ. اور آپ کو بتا دیں کہ یہ اچھی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتا، تعلیم دیتا، لیکن کیا کہیں، ان کی اہلیہ جو ہے یہ نابینا ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر زندگی بدلنا اور کسی کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کشمیر کراؤن کی ٹیم خانیار مرزا باغ کی گلیوں کے اندر پہنچ گئی۔ ان گلیوں کے گرد نواح میں عالی شان لوگ، عالی شان بنگلے اور بڑی بڑی گاڑیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت بے حساب ہے، لیکن کھلے آسمان کے نیچے ایک جھونپڑی کے اندر کوکرناگ وائل کا رہنے والا یہ محمد شفیع اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں اور نابینا اہلیہ کے ہمراہ زندگی کی جنگ کیسے لڑ رہا ہے، وہ جگر کو کاٹ دینے والی تصویریں ہماری ٹیم نے چشمدید دیکھی۔ اس شخص کے پاس زندگی کی نہ کوئی آس اور نہ ہی کوئی امید بچی ہے کہ خدائے ذوالجلال سے اپنے 3 بچوں کا پیٹ بھرنے کی دعائیں مانگتا ہے، اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے۔ بے سہارا اور بے آرو مددگار محمد شفیع کے لیے کشمیر کراؤن کی ٹیم نے اینٹ کی ایک گاڑی فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو آپ سب لوگ بھی اگر اس شخص کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف 24 گھنٹے تک اس کے اکاؤنٹ میں امداد کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ 24 گھنٹے کے بعد آپ سب لوگ کسی دوسرے شخص کی زندگی سدھارنے کے لیے امداد کر سکتے ہیں۔ خانیار مرزا باغ سے کشمیر گراؤنڈ کے لیے شاہد عمران اور مشرف وانی کی خاص رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین محترم۔ آج کے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ وقت کے ایک تماچے کی بات ہے صاحب، میری فقیری کیا آپ کی بادشاہی کیا۔ میں اس وقت شہر سری نگر کے دل یعنی خانیار علاقے میں موجود ہوں۔ ایک طرف سے اس شہر، جو شہر بڑے بڑے لوگوں کا، بڑے بڑے بزرگوں کا، اسلافوں کا رہا ہے، ایک سائڈ سے ایئرپورٹ، دوسری طرف سے ڈل کی خوبصورتی، ایک طرف سے مغل بادشاہوں کے باغات، اور ایک طرف سے بڑے بڑے لوگوں کے محلات، بنگلے اور گاڑیاں۔ اسی شہر کے بیچوں بیچ اس وقت میں موجود ہوں۔ مرزا باغ، مسکین باغ کہیں، خانیار کہیں، لیکن اسی علاقے میں ایک کمزور، بے بس، مجبور باپ گزشتہ 12 سالوں سے آس لگائے بیٹھا ہے۔ میں ہوں صحافی فلاحی ریاست کا، اور یہ جو بالکل آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس شیڈ کے اندر جو یہیں کے ایک مقامی انسان نے اس کو پرووائیڈ کی ہے، محمد شفیع ڈار کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی اہلیہ، نابینا اہلیہ کے ساتھ ہر روز دیکھتا ہے، ہر روز یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، شاید کوئی نہ کوئی اس طرح سے آئے گا جس طرح سے آج سے قبل کئی سال پہلے وہ محمد تیرے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، گلیوں میں عمر کا جانا یاد آتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ زندگیاں ترس رہی ہیں، تڑپ رہی ہے۔ میں اپنے کیمرامین کو بتا دوں کہ وہ دکھائیں سب سے پہلے کہ یہ محمد شفیع ڈار ہے۔ محمد شفیع ڈار ایک کمزور اور بے بس باپ
जो अपने 3 बच्चों को पाल लेता, अच्छी तरह से पाल लेता, मकान नहीं है इनके पास कुछ भी नहीं है, कुकरनाग से इनका ताल्लुक है, वाइल हारपोरा कुकरनाग। और आपको बता दें कि ये अच्छी तरह से अपने बच्चों की तरबियत करता, तालीम देता, लेकिन क्या कहें, इनकी अहलिया जो है ये नाबीना है, इनकी आंखों की रोशनी नहीं है। अब ये बच्चों का पेट पालने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए जाता, मजदूरी करता, मेहनत करता। हत्ता कि मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि इनके पाँव की हालत, आप पैरों की हालत देखिए, जरा ये दिखाइए, जरा ये दिखाए आप देखें ये है इसके पैरों की हालत। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ये मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, लेकिन इनकी अहलिया जो है नहीं देख सकती, इस दुनिया की कुछ भी शाई को नहीं देख सकती है। बहरहाल मोहम्मद शफी साहब, रोने के बगैर आप मुझे ये बताएं कि कच्छुती बसा, आप गुजरपति कुकरनाग से हैं और गुजर तबके से आपका ताल्लुक है, तो ये बता दीजिए मुझे क्या हुआ है आपके साथ, क्यों आप इतना रो रहे हैं, जिंदगी ने क्यों इतना सताया है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। मैं चाहता हूँ मकान के लिए, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? इस पहाड़ी पर रहता हूँ मैं, मेरे को 12 साल हो गए यहाँ श्रीनगर में, मैं क्या करूँगा? आप जवान हैं, हिम्मत है, मेहनत करते हैं और अपने बच्चों का पेट भरते हैं, आपकी अहलिया जो है नाबीना है, फिर भी आप जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो अभी आपको किस चीज़ ने ज़्यादा सताया है? जी मजदूरी, ये महंगाई है जी बहुत। इधर ये नहीं है, चावल भी महंगा है, राशन भी महंगी है, बहुत सारा महंगाई है, क्या करेंगे, महंगाई है इधर, हमारे को कुछ नहीं मिलता है जी। मजदूरी मिलती है खाने के लिए, बाकी तो हमारे को किराए पर है, क्या करेंगे? हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया श्रीनगर में? श्रीनगर में 12 साल हो गया जी। हाँ जी। ये यहाँ पे आए थे मजदूरी की गर्ज से? मजदूरी की गरज से, मगर ये हो गया, मैंने बोला कुछ बचेगा, पैसा कुछ नहीं बचा, अभी मैं मजदूरी कर रहा हूँ, इन बच्चों के पेट पाल रहा हूँ, मगर मेरे मकान नहीं है मेरे पास, मेरे को मकान चाहिए जी। हाँ जी। तो सरकार से कभी अप्रोच किया आपने, बीडीओ साहब को या जो आपके एमएलएज या पॉलिटिशियंस, या आज तक हुकूमतें रही है, फारूक अब्दुल्ला साहब की, उमर अब्दुल्ला साहब की, महबूबा मुफ्ती, आज़ाद साहब, बीजेपी, किसी के पास आप गए? नहीं जी, हम किसी के पास नहीं गए जी, हम किसी के पास नहीं जी। हाँ जी, वो कुछ नहीं देते हैं जी, बोलते हैं 50,000, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, हमारे को सीधा कोई नहीं बोलता है जी। नहीं, अभी तक आप ब्लॉक पे जो गए, ब्लॉक पे कभी आपने? नहीं जी, हम ब्लॉक पर नहीं गए। क्यों? नहीं गए जी, हम गए ही नहीं। हमने बोला इधर से बचेगा पैसा, हम वही लगा लेंगे, हम किसी जगह नहीं गए हम। हाँ जी, हम सच बोलते हैं, किसी जगह नहीं गए। हाँ जी। तो ये बता दीजिए मुझे शफी साहब कि ये जो अभी आपकी हालत है, अभी क्या मसला है? अभी जी मसला है जी, हमारे को घर नहीं है, मकान नहीं है। मकान कैसे सोते हैं जी? इधर सो जाते हैं, इधर बेड बनाया हुआ है, इधर ये बर्तन रखे हुआ है, पानी गिरता है, इधर साइड में पानी गिरता है, जब हवा आती है इधर सारा पानी, हाँ जी, पानी गिरता है जी। हाँ जी, नीचे पानी आ जाता है जी। तो फिर क्या करते हो? जी बैठ जाते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं जी, क्या करेंगे, कहाँ जाएं, हमारा घर ही नहीं है जी। हाँ जी, हमारा घर नहीं है कुछ, हम बोलते हैं घर चाहिए हमारे को। हाँ जी। किसको बोलते हो घर चाहिए? आपको बोलते हैं जी। अच्छा, मुझे बोलते हो? मैं तो मीडिया में काम करता हूँ। नहीं जी, आप ही को बोलते हैं जी, आप हमारी मदद करोगे इंशाल्लाह, आप मदद हमारी करोगे जी। इंशाल्लाह वो लोग अगर चाहें तो आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ जी। तो लोग या कोई किसी को दिल में एहसान आए, हमारी मदद कर दे, बस वही हमारा बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं। अच्छा। हाँ जी, क्या करें जी, हम गरीब आदमी हैं, बहुत गरीब आदमी हैं जी। तो बच्चों का पेट अच्छे से पलता है कि कभी बच्चों कभार? का पेट अच्छे से पलता है जी, ठीक से पलता है, मगर महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। हम कमा सकते हैं, ये पेट के लिए कमा सकते हैं, मगर मकान के लिए नहीं कमा सकेंगे कुछ, क्या करेंगे? ठीक से चलता है कि कभी कभार प्रॉब्लम्स होती है खाने पीने में? नहीं जी, खाने पीने में कभी कभार हो जाती है जी, कभी कभार हम गुजारा कर लेते हैं जी, हम ऐसे ही रह जाते हैं, कोई बात नहीं है, चल जाएगा, मगर मकान नहीं है हमारे पास, हम क्या करेंगे? क्या क्या पकाते हो सब्जी में? सब्जी में क्या पकाते हैं जी, हाक पकाते हैं जी, और कुछ पका लेते हैं जी, क्या करेंगे?
हाँ जी हाँ, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दिन पर बड़ा बड़ा लाते हैं, हम क्या लाएंगे, हम कुछ नहीं ला सकेंगे। हाँ जी, हमारे पास कपड़े कितने हैं बच्चों के पास? थोड़े हैं जी, कपड़े क्या है, एक एक दो दो कपड़ा है और क्या है। तो कब लाए इनके कपड़े लास्ट टाइम? ये ईद के दिन लाए थे जी। हाँ जी। अच्छा, कपड़े हैं आपके पास? हाँ हाँ सर जी है। किस स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल में हाँ? स्कॉलर स्कूल। अच्छा, स्कॉलर स्कूल। हाँ। तो मुझे बताएं क्या क्या बनना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको अभी? हमारे पास मकान नहीं है, बस हमारे पास मकान नहीं है। मकान नहीं है? नहीं। आपको किसने बोला आपके पास मकान नहीं है? हमें पहले से ये है पता, ना? हम देख भी आए हैं, हम देख के भी आए हैं, क्या? मकान नहीं है हमारे पास। अच्छा, नहीं है आपके पास। ये क्या है जिसमें रह रहे हो? ये ऐसे ही झोंपड़ी। अच्छा, झोंपड़ी है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट? हाँ। बनोगे? यकीन है। यकीन है? हाँ, बनो। पूरा यकीन? आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? कोई बात नहीं। रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। हाँ? आप क्यों रो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। हाँ? साइंटिस्ट। अच्छा, साइंटिस्ट। तो अपने माँ बाप की खिदमत करोगे? हाँ, कैसे, मुझे बताओ। हम बहुत खिदमत करेंगे, बहुत खिदमत। अच्छा, बहुत खिदमत। हाँ। तो शफी साहब ये बता दीजिए मुझे अपनी अहलिया के बारे में। इसकी आंखों की बिनाई नहीं है जी, इसकी आंखों की बिनाई नहीं, इसकी आंखों की बिनाई नहीं है जी। बिल्कुल भी नहीं। नहीं जी, इसकी आंखों की बिल्कुल बिनाई नहीं है जी। ऐसे हमारे को चलती है, वहाँ बाथरूम तक जाती है जी। हाँ जी, हम बहुत गरीब आदमी है जी। हम क्या करेंगे, कहाँ जाए, कहाँ जाए हम, कहाँ जाए हम कहाँ जाए, ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं हम करें। कहाँ जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जज्बात और एहसासात के हवाले से इंसान काबू नहीं कर सकता है कि मोहम्मद शफ़ी और इनके 3 बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्या एज है इनकी? इनकी एक 10 साल की है जी, एक 7 साल की है, एक 6 साल की है जी। 10 साल की एक, दूसरी जो बेटी है इनकी 7 साल की, तीसरी बेटी 6 साल की। 6 साल की। तो खुद देखिएगा कि मैंने पहले ही कहा कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने एक इंसान को इस दुनिया में भेज दिया है। बार बार मैं कहता हूँ कि किसी की ज़िंदगी अगर आप तब्दील करेंगे, आप रिटर्न्स मत देख लीजिएगा, बिल्कुल भी रिटर्न्स मत देख लीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे लोगों की खिदमत, ऐसे लोगों की मदद, ऐसे लोगों के लिए इंसाफ, ऐसे लोगों के लिए इंसानियत की अलम के लिए आप काम करेंगे तो यकीनन, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर किसी को साहिब सरवत या साहिब माल बनाया है, यकीनन ऐसे ही लोगों के लिए दिया है। तो नाज़रीन मोहतरम, हम अपनी तरफ से, कश्मीर क्राउन की तरफ से इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं मोहम्मद शफ़ी साहब के साथ वादा करता हूं कि हम अपनी तरफ से इनको ईंट की एक गाड़ी, ऐसे मत कीजिएगा, ईंट की एक गाड़ी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इंशाअल्लाह कल या परसों इनके इलाके में, जहां पे इनका ये रिहाइश पजीर है, चूंकि बेड ऑलरेडी वहां पे दिया गया है, बेड दिया है, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आपको ईंट की एक गाड़ी हम फराहम करते हैं। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी। इंशाल्लाह हम वो कल या परसों इनको देंगे। आप यहाँ पे आ जाएं, आप ही ने मुझे इनका बता दिया और आप कहाँ पे रहते हैं, और हमारी तरफ से इंशाल्लाह कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की जानिब से हम इनको ईंट की एक गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? मैं इन्हीं के पड़ोस में रहता हूँ, इन्हीं के इलाके में रहता हूँ। मैं जान पहचान, मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पैदाइश भी यहीं हुई है। अच्छा, इनके झोंपड़े नहीं, इससे पहले एक मकान में, कच्चे मकान में रहते थे। हाँ, जो उधर से उन्होंने निकाल दिया। इन बच्चों की पैदाइश यहीं हुई और इनके पास घर वर कुछ नहीं है, कहीं कहाँ जाए अगर अपने घर की तरफ जाएंगे। अब ऐसा भी है कि आप क्या करते हैं? मैं खुद मदरसे में पढ़ाता हूँ, दारुल उलूम में आप हाफिज हैं?
जी मैं चंडीगढ़ में हूँ। अच्छा अच्छा, जी मैं चंडीगढ़ में हूँ। लेकिन इनको जानते हैं अच्छे से? हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप ही ने फ़ोन किया मुझे? नहीं फ़ोन किया क्योंकि इनको इसके बारे में मालूम नहीं, ना इनके पास बड़ा मोबाइल है, छोटा सा मोबाइल है, कुछ बड़ा मोबाइल भी नहीं है। देख रहे हो आप, आवाज़ भी नहीं इस मोबाइल में आ रही है। 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता हूँ, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ, इनकी मदद मैं किसी तरह करवा सकता हूँ। किसी को मैं फ़ोन, आपकी वीडियो में बहुत देखता रहता था कि ऐसे ऐसे, तो फिर मैंने आपका नंबर मैंने इससे निकाला गूगल से, तो मैंने कहा इन फ़ोन करूँ कि अगर इनकी कुछ मदद हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। इनकी अहलिया को क्या मसला है? इनके अहलिया की बिल्कुल आँखों बीना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब 2 बच्चे पढ़ते हैं, तीसरी बच्ची नहीं पढ़ती है क्योंकि कल क्यों नहीं पढ़ती है? कल ये, अब मैं आपको ये बताऊं, कल ये बड़ी हो जाएगी, ये अपने माँ बाप को गालियाँ देगी, कहेगी 2 को पढ़ाया और मुझे नहीं पढ़ाया। वजह यह है, ये छोटे बच्चे को इसलिए रखा है कि ये अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर उसको बाथरूम तक ले जाती है, कि ये अपने बाथरूम तक नहीं जा सकते, इसको नज़र नहीं आता है, बिल्कुल नहीं नज़र आता। लाइट नहीं है, ये पकड़ती है इसकी बाजू और बाथरूम तक पहुँचाती है। जी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं? आप थोड़ा पीछे जाओ बेटा, पीछे जाओ। ये बच्चों को कैमरा में नहीं लाइएगा, बच्चों को कैमरा में नहीं लाइएगा। तो ये बता दीजिए मुझे अपना नाम और क्या क्या मेरा नाम हसीन। हसीन, اہن क्या मसला है? أسۍ چھِنہٕ مکانٕے گرِ أسۍ چھِ یژھان أسۍ کٔرِنۍ کانٛہہ مدد أسۍ کھالاو مکان أسۍ چھِنہٕ بننٕے پونٛسہٕ تہٕ کِتھ کٔنۍ کھالو تو چھُنہ کِہیٖنۍ بِلکُل لایٹ چھِ؟ نہ خۄدایَس پتہٕ مےٚ چھِ کِتھ کٔنۍ چھُو گُزار کران؟ وۄنۍ کیٛاہ کرو کران چھِ گُزار تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کرو کیٛاہ کرو أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ غریٖب گرِ تہِ چھِنہٕ اَسہِ مکان کِہیٖنۍ نہ چھِ زٔمیٖن سیوٚد سہلاب آو تَمے سۭتۍ گوٚو زٔمیٖن تہِ کِہیٖنۍ چھِنہٕ وٕنکٮ۪نَس مےٚ زاے 3 شُرۍ تہٕ 3 آپریشن آیِم بیٚیہِ آیِم تِلہٕ پِت کوٚڑُکھ اوترٕ ہردس منٛز تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھِ اَسہِ مکانٕے وۄنۍ چھِ نٮ۪برٕ کَنۍ اَسہِ باسان ییٚمہِ ساتہٕ چھِ واو یِوان تہٕ أنٛدرٕ کَنۍ چھِ یِوان یِم ژھٹھ یہِ سٮ۪کھ وٮ۪کھ ژھۄٹھ آسہِ سُہ آسان أنٛدرٕ کَنۍ آسان أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ غریٖب مےٚ چھِ صُبنَس گژھان خانٛدار موٚزوٗرۍ دۄہ تہٕ شامنَس یِوان پَتہٕ چھِس رَننہٕ پٮ۪وان تہٕ گرِ کیٛاہ کَرِ تُہۍ چھُو نہٕ ہٮ۪کان بِلکُل کِہیٖنۍ؟ نہ حظ نہ کُنہِ ساتہٕ رَنان بَتہٕ پھوٚل یہِ رایِس کُکرَس منٛز بَس تو ناظرین بہرحال اب یہی امید کی جا سکتی ہے کہ کم سے کم اگر آپ بھی اس بے بس مجبور لاچار باپ کی مدد ایسے مت کیجیے گا خدا کے لیے یہ میرا فرض ہے. دیکھیے آپ کی سٹوری کرنا میرا فرض ہے, لوگوں تک آپ کی آواز پہنچانا میرا فرض ہے, لیکن اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ میرے لیے زیادتی ہے. خدا کے لیے آپ آئے ہو وہاں سے ہمارے کے لیے, آپ کو عزت دے. نہیں, اللہ آپ کو بھی عزت دے, لیکن ہمارا فرض ہے کہ آپ نے مجھے اپنی جو روداد ہے مولوی صاحب نے بھی سنائی, آپ کی میں نے سنی, میں نے لوگوں تک آپ کی بات پہنچائی. اب لوگ جو ہیں, آپ اس مجبور بے بس اور بے کس 3 اولادوں کے مجبور باپ کی مدد کریے گا, کیونکہ ان کی اہلیہ زندہ لاش بنی ہوئی ہے. آپ خود دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ قسم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. خانیار, میں نے پہلے ہی کہا کہ شہر میں نہ جانے کتنے لوگ شام کو کیفیز, شام کو بریانی, شام کو حالانکہ بڑے بڑے ڈشز پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. ان کے مکان پہ میرے خیال میں یہی 5 سے 10 لاکھ روپے کا خرچہ آ سکتا ہے. تو یقیناً خدا کے لیے آپ ان کی مدد, بالکل تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہم ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈسپلے کرتے ہیں, ان کا فون نمبر بھی ڈسپلے کرتے ہیں. اگر اس فون نمبر اور اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے آپ ان کی مدد کریں گے تو یقیناً اللہ آپ کو اجر دے گا. اللہ آپ کو یقیناً, میں نے پہلے ہی کہا کہ ریٹرنز کا آپ دھیان نہیں رکھیے گا, آپ یہ امید نہیں رکھیے گا کہ اجر, لیکن صبر رکھیے گا. اور صبر سے ہی انسان کم سے کم ایسے لوگوں کی جو ہے امداد کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کی امداد کرنا, یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی جانب سے اینٹ کی ایک گاڑی انشاءاللہ العزیز ہم ان کے گھر پہنچا دیں گے, اور انشاءاللہ العزیز وہ اینٹ کی گاڑی جو ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ محمد شفیع ڈار تک پہنچ جائے گی. باقی مدد جو ہے وہ آپ ان کے لیے کریں, ان کی اہلیہ کے لیے کریں, ان کے بچوں کے لیے کریں. مجھے امید ہے کہ آپ ان کی ضرور آج مدد کریے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. مشرفانی کے ساتھ میں شاہد عمران کشمیر کراؤن کے لیے خانیار, مرزا باغ, مسکین باغ سے آپ سب کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر. تو ناظرین, یہ جو فیملی ہے جو اس وقت
कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इनका अकाउंट नंबर जो है आप हमने दिया है, और ख़ासकर इनका फ़ोन नंबर ज़्यादा हमने फ्लैश किया है लास्ट पे, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और 24 घंटे तक ये अकाउंट जो है, इसमें आप इनके लिए इमदाद कर सकते हैं, इनके लिए मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनका घर बन जाए, इनकी ज़िंदगी संवर जाए, तो यकीनन उससे ये लोग भी खुश हो जाएंगे ज़िंदगी में, और यकीनन जो है इन लोगों का ख़ासकर जो मयार ज़िंदगी है वो भी बेहतर हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 24 घंटे तक आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं, और इनकी इमदाद करने में आप ज़रूर अपना जो हक़ है वो अदा करें, अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप।